اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون کتاب افلا تعقلون۔ کیا تم بتاؤ، علماء تم ہو، کتاب کا علم رکھتے ہو، توریت کے تم ماہر ہو، تم لوگوں کو وفاداری کا، نیکی کا درس دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہاں چلے گی تمہاری عقل جب تم عدل کی بات کرتے ہو، انصاف کی بات کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، وفاداری کا درس لوگوں کو دیتے ہو؟ تم بھی تو وفادار بنو، تم بھی تو نیک بنو، تم بے ایمانی کیوں کرتے ہو؟ تم بے وفائی کیوں کرتے ہو؟ یہ خطاب کا انداز ہے قرآن مجید کا۔ افلا تعقلون، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے تم۔ سید الیاس شکیل صاحب، اب آپ بتائیے، گویا کہ اگر آدمی امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ ایک سوال پیدا ہوگا۔ بالفرض ہم کو معلوم ہے کہ بھلائی یہ ہے، برائی یہ ہے، جی، اور بھلائی اور برائی دونوں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں لوگوں کو، لیکن خود اس میں ملوث ہیں۔ بولیے تو کیا مطلب اس کا؟ چھوڑ دیں اس کو؟ الیاس صاحب بولے چھوڑ دیں اس کو؟ قرآن مجید کا اسلوب تو کر رکھ، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لم تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، ہے نا اوپر تھا، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ تم کتاب پڑھتے ہو، اتنی عقل نہیں ہے؟ تو گویا ابھار رہا ہے کس چیز پر؟ کہ جب تم نیکی کا حکم دے رہے ہو، برائیوں سے روک رہے ہو، تم بھی رکو، تم بھی رکو۔ جس اچھائی پر لوگوں کو تم بلا رہے ہو، ابھار رہے ہو، اس اچھائی پر تم بھی عمل کرو۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ تم تو لوگوں کو بلاؤ اچھائی کی داری وفاداری جائے اور تم بے وفائی کرو، یہ غلط بات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ابھی وہ فقہ کا مسئلہ دیکھیے، ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ یہ فقہ کا مسئلہ، قرآن مجید کا مطالبہ یہی ہے کہ قول اور عمل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے کہ آدمی اگر نہیں کر رہا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ، انجام نہیں دے رہا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ فریضہ ہے، یہ جانتا ہے فریضہ ہے، تو پھر جانتے ہیں آپ، ایک آدمی نہیں جانتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ کم مجرم ہے۔ لیکن آدمی جانتا ہے، جان بوجھ کر یہ فریضہ نہیں انجام دے رہا ہے کہ صاحب ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، یہی نہیں دیا، وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب اگر جو ہے اس نے جانا، خوب پہچان لیا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی فضیلت جانتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اب یہ سمجھ کر یہ فریضہ چھوڑ دیا، مجرم ہے، وہ دوہرا مجرم ہے۔ ایک تو وہ جانتا ہے، علم ہے اس کو، جی علم تھا نا، اس کو کرنا چاہیے تھا اور اس نے چھوڑ دیا، تو عمل نہیں کر رہا ہے تو ایک جرم ہے، جی عمل نہیں کر رہا ہے، جانتا ہے عمل نہیں کر رہا ہے، ابھار رہا ہے لوگوں کو، لیکن عمل نہیں کر رہا تو ایک جرم ہوگا، تو یہ بھی نہ کرے اگر تو دوہرا جرم ہو گیا اس کا۔ اس بنیاد پر یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم میں سے جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ
انجام دے رہے ہیں، عمل میں تھوڑے کوتاہ اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کیا کہ ہماری زندگی میں تضاد نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ جس چیز کی جانب ہم بلا رہے ہیں اس پر ہماری زندگی بھی مکمل اترے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں کچھ تضاد ہو ہم اس کے خلاف کریں۔ تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو ہے جو قرآن مجید نے یہ کہا ہے لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو؟ تو وہ دعویٰ ہے، وہ دعوے سے روکا گیا۔ لم تقولون دعوت میں نہیں ہے، سمجھ لیجئے دعویٰ ایک ہے، دعویٰ سے روکا گیا ہے، دعوت سے نہیں روکا گیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، لیکن دعوت تو ہم دیتے رہیں گے، دینا چاہیے۔ یہ کہ اگر جو ہے کہیں کوتاہی ہے اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مستقل طور پر دعوت دینی چاہیے، اس سے کبھی بھی جو ہے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ آگے کیا ہے بھائی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ اس امت کو بھی خطاب آگے کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اس امت کو بھی، ان کو بھی کہا واستعینوا بالصبر۔ یہ انبیاء کی دعوت کا اہم ترین جز ہے، نماز، زکوٰۃ اور صبر، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو تم مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر بھی اہم ترین چیز ہے، ہم نے شاید پہلے بتایا ہو کہ صبر جو کلید ظفر ہے، کامیابی کنجی ہے۔ یہ اگر صبر کی کنجی نہیں ہے کسی کے پاس، نہ فرد کامیاب ہو سکتا ہے نہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے شاید یہ بتایا آپ کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا معزز کیا تھا، امام اور رہبر بنایا تھا، اسی بنیاد پر کہ وہ قوم صابر تھی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب تک انہوں نے بے صبری کی ہے اس وقت امام نہیں بنایا تھا، جب ثابت قدم ہوئے، جم گئے میدان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا ہے، دنیا کا امام اور رہبر بنایا۔ تو صبر جو ہے نہایت ہی اہم ترین چیز ہے۔ قرآن مجید خوب ابھارتا ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے ضمن میں آ رہا ہے، خود امت مسلمہ کے ضمن جہاں باتیں آئی ہیں خوب کھولا ہے اس کو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی شاق ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، یظنون الخاشعین، ڈرنے والے لوگوں پر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے۔ ظن کے معنی گمان نہیں، ظن یقین کے معنی میں یقین رکھتے ہیں۔ آخرت اور نماز دونوں بڑی گہری مناسبت ہے۔ وہ شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کا اہتمام نہیں کر سکتا جس کا آخرت پر غیر معمولی یقین نہ ہو۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیوں؟ روز جزا جھٹلا رہا ہے۔ جو روز جزا جھٹلانے والے لوگ ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ مدثر میں آیا ہوا ہے کہ جنتیوں دوزخیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا، تو جنتی دوزخیوں سے پوچھے ما سلکم فی سقر، قالوا لم نکو من المصلین ولم نک نطعم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور آگے کیا ہے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانے پر نہیں ابھارتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ روز جزا پر جب تک یقین نہیں ہوگا، آخر کا تصور مستصر نہیں ہوگا، تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نمازی وہی بن سکتا ہے جس کا آخرت پر یقین ہو۔ آگے کیا ہے مولانا؟ اور اس کی جانب لوٹنا، بات وہی ہوئی نا، ایک دن پلٹنا ہے۔
पलट कर जाना है। आगे अब फिर आ गया, इसको औद अल-बद कहते हैं, बार बार तकरार हो, या बनी इसराइल, बार बार इसको औद अल-बद का उसलूब कुरान मजीद करना, औद अल-बद, फिर उसको ले लिया, बार बार तंबी, फोकस इस पर, ऐ इसराइल के फर्जंदो मेरी नेमत को याद करो, भूलो मत, नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की है। और क्या है, वानी, और इस बात को याद करो कि मैंने तुमको फज़लतुकुम अलल आलमीन से मुराद क्या होगा ख्वाजा साहब, वानी फज़लतुकुम अलल आलमीन, तुमको हमने फजीलत दी किस पर, हैं, तमाम इंसानों पर। ये बात है। अब जाहिर है आसमान पर फजीलत तो है ही है, ज़मीन से मुराद नहीं फजीलत, क्या है, तमाम इंसानों पर तुमको हमने फजीलत दी है। यहाँ देखिए ये अल्फाज खुद अलल आलमीन, यहाँ खुद बता रहा है कि मुराद कौन है, इंसान है, इंसान और फजीलत। जहाँ तक चूटियों की बात है, दरख्तों की बात है जी, पत्थरों की बात है, पहाड़ों की बात है, ज़मीन की बात है, आसमान, उस पर फजीलत इंसान रखता ही है जी। असल मसला किस पर है, इंसान और फजीलत दी है। सारे इंसान यहीं बस रहे थे जी, यूनानी भी, रूमी थे, वगैरह वगैरह सारे थे, बनी इसराइल को फजीलत दी अल्लाह ताला ने, मामूली चीज़ नहीं है। मिस्री थे, आप सोचिए मिस्री कौन बड़ी महज़ब है, कदीम ज़माने से, खुद यूनान और रूम और ख़ुद हिंदुस्तान, बोलिए हिंदुस्तान कदीम तहजीब गहवा रहा है ना, सब पर तुमको फजीलत दी है, मामूली नहीं चीज़ें। वन्नी फज़लतुकुम अलल आलमीन लिहाजा वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्स अन नफ्स, डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को बदला नहीं दे सकता है, किसी को बदला नहीं दे सकता। ऐसा दिन होगा कि कोई एक दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, और ना अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा। क्या अल्फाज हैं, ला तुख़ज़ु मिन्हा, और ना किसी की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। ये यहूद की सबसे बड़ी गुमराही है कि उन्होंने कुछ लोगों को ठहरा लिया था कि हम चूँकि अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बड़े चहीते हैं, अल्लाह क्या करेगा, हमें बख्श देगा, फलां बुज़ुर्ग हैं जो अल्लाह के हमको बख्शवा लेंगे। तो ये समझ लो, ये कोई फ़िदिया कबूल नहीं किया जाएगा, और न क़यामत दिन कोई किसी की मदद कर सकता है। तुम्हारा अमल होगा, तुम होगे, इसके अलावा कोई चीज़ तुमको बचा नहीं सकती। ये यहाँ तक एक ख़ास अंदाज से बयान किया है। उसके बाद अब सिलसिला चला है। अब यहाँ से सिलसिला जो आपने पढ़ा है, जहाँ तक आयत नंबर 61 तक, अब सिलसिला चला है। क्या कि अल्लाह ने क्या फजीलत दी है, क्या क्या इनाम किया है इन पर, और फिर इनाम पाने के बाद इनकी हरकतें क्या क्या रही हैं, उनकी तफसील। और ये सब बयान करने वाला तुम बताओ, तुम सोचते हो कि हमारे होते हुए, तौरेत को होते हुए, मूसा की तालीमात को होते हुए, नई तालीम, नया नबी, नई कौम, ये देखो फ़र्द करारदाद जुर्म, तुम पढ़ो ज़रा, देखो तुम अपने आप को महबूब समझते हो और समझते हो कि इस दुनिया में हम ही सबसे ज़्यादा अल्लाह के पसंदीदा मखलूक हैं। तुम अपने जराइम देखो, इतनी बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे खुबा देख, तुम देखो क्या समझते हो अपने आप को। अब यहाँ से जो है ना सिलसिला शुरू किया, क्या है, पढ़िए। तर्जमा भी पढ़ दीजिए इस आयत का। और याद करो उस वक्त को जबकि रिहाई दी हमने तुमको फिरौन के लोगों से, जो करते थे तुमको बड़ा अजाब, ज़बह करते थे तुम्हारे बेटों को और ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी। बस देखिए यहाँ जो है अब तफसीलात हैं किसकी, नेमतों की। हमने तुम पर कितनी नेमतें की हैं, तुम देखो कितनी नेमतें हमने तुम पर की हैं, कितने एहसानात हमने किए। याद करो उस एहसान को कि जो तुम पर किया है, कि बनी इसराइल
कि पूरी बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था फिरौन ने, आले फिरौन ने, मजालिम के पहाड़ तोड़े हुए थे। ये सुमन सूअल अज़ाब, बदतरीन सज़ा दे रहे थे। उसकी तफसील क्या है कि बच्चों को ज़बह करते थे, बेटों को ज़बह करते थे, बच्चों को छोड़ देते थे। बच्चों क्यों छोड़ते थे, किस लिए छोड़ते थे? बोलिए, किस लिए छोड़ते थे बच्चियों को? बांदी बना लेंगे और उनसे बेगार लेंगे और धीरे धीरे फिर वो क़िब्ती कौम में औरतें हैं ना जम हो जाएंगी। औरतें तो बहुत जम हो जाती हैं, फ़ौरन आदात अतवार को कबूल कर लेती हैं दूसरी कौम को ना। तो ये रहने दो इनको, ये जो इनको बांदियाँ बना लेंगे, इनसे बेगार लेंगे। बेगार क्या लेते थे मालूम है? क्या कराते थे उनसे? नहीं, पूरे मिस्र में भट्ठे थे। भट्टा समझते हैं आप लोग? ईंटों के भट्ठे थे, भट्ठे थे, और पूरे मिस्र में इन्हीं को जोत रहे थे, वो इन्हीं से काम लेते थे और मजदूरी नहीं दे रहे थे। ये सूअल अज़ाब जो कह रहा है, वो मजदूरी भी नहीं दे रहे थे बनी इसराइल को। पूरी कौम का ऐसा गुलाम बना रखा था। उसकी जानिब इशारा किया है अल्लाह ताला ने। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। इस मामले में क्या है फिर? बला के माने देखिए, इन्होंने जो तर्जुमा किया बला माने आजमाइश। ये आजमाइश का तर्जुमा यहाँ किया है, और हमारे और दूसरे मुतरजमीन ने भी आजमाइश का तर्जुमा किया है। ये जो है ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमारे अरबी मुफस्सिरीन भी जो है ये लेते हैं, लेकिन अरबी मुफस्सिरीन की अक्सरियत इस तरफ गई है कि बला के माने इनाम के, एहसान के। ये देखो तो कितनी बड़ी नेमत है कि वो मुसल्लत था, अल्लाह ने बचाया है। ये कितना बड़ा इनाम है। सोचते हो फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे रब की जानिब से इसमें क्या है? अजीम एहसान है, अजीम नेमत है ये कि अल्लाह ताला ने कैसे बचाया तुमको। बात वाज़ेह हो रही कि नहीं? तो वो फ़ी ज़ालिकुम ये अरबी हमारे मुफस्सिरीन भी बला के माने एहसान के लेते हैं, और उर्दू मुतरजमीन ने भी लिया है। अगर शाह अब्दुल क़ादिर साहब तर्जमा होता तो आप देखते हैं वो हर जगह ये तकरीबन जो है बनी इसराइल के ज़िम्न में तकरीबन 6 मकामात पर आया हुआ है। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, हर जगह उन्होंने एहसान या नेमत ही का किया है, इनाम का तर्जमा किया, और ये मुनासिब तर्जमा। बाद लोग जो है ना कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। बाद लोग हर जगह वो नहीं किया है। यहाँ तो आजमाइश कर देंगे, और जब चलेंगे वहाँ सूरत दुखान में भी आया है, इसी ज़िम्न में आया है, वहाँ बड़ा इनाम लेते हैं। लेकिन बहरहाल मुनासिब बात ये है, बला यकीन आजमाइश के लिए भी आता है। हमें नहीं कहते नहीं आता, बला आजमाइश के लिए भी आता है। लेकिन बला के इस्तेमाल जहाँ आजमाइश के लिए होता है, वहीं इनाम के लिए भी होता है। हमने सूरह अनफाल वाली आयत को पढ़ा था, वलियुब्लियल मुमिनु मिन्हु बलान हसना, वलियुब्लियल मुमिनु मिन्हु बलान हसना, और ताकि हम अहले ईमान पर बेहतरीन जो इनाम करें। बलान हसना से क्या है? बलान हसना, हसना मुसीबत भी होती है, आजमाइश में हसना हो सकती है। ख्वाजा साहब, हम बेहतरीन आजमाइश में डालें मोमिन को, तो नहीं हो सकता है। आजमाइश के साथ बेहतरीन तो नहीं लगेगा ना, वो इनाम ही के साथ लगेगा। तो बला के माने इनाम, इसमें इनाम है, इस इनाम का तज़किरा हो रहा है। मौथानी का तर्जमा है वो भी नहीं, ये तर्जमा फिज़ल खान तर्जमा क्या है? आजमाइशी। और भी कोई तर्जमा नहीं आपके यहाँ? देखिए तर्जमा आपका दास इब्न कसीर नहीं तर्जमा तो इस नजात देने में तुम्हारे रब की मेहरबानी। हाँ, क्या समझा आपने? इब्न कसीर ने इसको इसी को लिया है। इब्न कसीर ने इसी को तरजीह दिया। किसको? नजात नहीं, मेहरबानी। मेहरबानी आजमाइश नहीं हुई, इनाम, इनाम एहसान ही का तर्जमा किया है। तो गोया इब्न कसीर और हम तो कहते हैं ज़मख़शरी और फतहुल क़दीर, इमाम शौकानी, सब इसी को माना तरजीह दे रहे हैं। किसको? इनाम। चलिए, और भी इनामात का जिक्र है। वही फ़रक़ना बिकुमुल बहर, याद करो उस मौके को कि तुमको लेकर जो हमने दरिया को पार किया, यही ना? फ़रक़ना बिकुमुल बहर, फ़रक़ा माने फाड़ना है ना। हमने फाड़ा बहर को, बिकुम, बिकुम का मतलब
तुम्हारी खातिर भी हो सकता है, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए, और तुमको लेकर हमने पार करा, ये भी हो सकता है। दरिया को फाड़ कर तुमको हमने पार करा दिया। और क्या है, और फिर हमने तुमको नजात दी और आले फिरौन को हमने गर्क दरिया कर दिया। चलिए आगे चलते रहिए फटाफट, ये सब इनामात है उसके, सब इनामात। और वो भी कि हमने मूसा से वादा किया था 4 दिन तुम्हें रहना है और हम तुमको देंगे क्या, तौरेत देंगे, वादा किया था। लेकिन जब मूसा गया है, तुम देखो अपनी शरारतें देखो, उधर मूसा गया तुमने फौरन बछड़े को माबूद बना लिया। तुम सोचो किस कदर तुम ढीठ हो, कितनी बेखौफ हो। हुदल लिल मुत्तकीन आया है ना, हुदल लिल मुत्तकीन, कितनी तुम बेखौफ हो। अल्लाह ताला के एहसान को तुमने फरामोश कर दिया। फिरौन के मजालिम से तुमको अभी उसने नजात दी थी और तुमको दरिया पार कराया, तुम्हारे निगाहों के सामने उनको गर्क किया है। जब तुमने देखा है कौम के पास तुम्हारा गुजर हुआ, देखा कि वो बुत परस्ती के, तुमने फौरन कहा ये मूसा, हाँ पहले आपको याद होगा गुजारिश की थी कि हम हमारे बना देते, वहाँ डांटा था, लेकिन जहाँ गए फौरन बना ही दिया उन्होंने। वान तुम जालिमून, तुम जालिम थे। सोचो उसका तकाजा था कि फिर तुमको सजा देता, लेकिन देखो अब वो दरगुजर कर रहा है, बार बार माफ कर रहा है तुम्हारी शरारतें, और देखो अल्लाह का अफ़्व दरगुजर। तुम सोचो क्या कर रहे हो तुम। चलिए सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, फिर हमने माफ किया तुमको। चलिए आगे, किस लिए माफ किया, शुक्रगुजार बंदे बनो। शुक्र का जज्बा उभरे तुम्हारे अंदर, शुक्रगुजार बंदे बनो। लेकिन तुम कदम कदम पर नाशुक्री कर रहे हो। सोचो नाशुक्री तुम्हारी। चलिए याद करो उस वक्त को जबकि हमने मूसा को दिया, क्या दिया, किताब दी, फुरकान दी। फुरकान माने तौरेत को की सिफत फुरकान के माने फर्क करने वाली। कुरान को भी फुरकान कहा गया है, कुरान को ज़िया भी कहा गया और तौरेत को भी ज़िया है ना, सारी किताबों की सिफत है। तो फुरकान तुम्हें अता किया, जी फुरकान अता किया तुम्हें। चलिए हाँ, तो क्या पहला टुकड़ा, और जब हाँ कहा जब मूसा ने, या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, तुमने अपने ऊपर जुल्म किया बछड़े को माबूद बनाकर, लिहाजा अब ज़रूरत है कि तुम अल्लाह की तरफ तौबा करो, पलटो। और तौबा की शक्ल क्या होगी, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को मारो। अपने आप को मारो क्या मतलब, खुदकुशी करो, अपने आप को मारो, कत्ल करो, अपने आप को मारो, अपने आप को कत्ल करो। जी हाफिज साहब, अपने आप को कत्ल करो, अपने नफ्स कत्ल करो मतलब उन कबीलों में से जिन लोगों ने शिर्क किया था, हाँ, यानी जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया उनको कत्ल करो, क्योंकि मुर्तद हो गए ये, उनको कत्ल करो। फिर उसके बाद क्या है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, कत्ल करोगे ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इबरत होगी, नसीहत हासिल करेंगे, आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। चलिए फताब अलैकुम, तो अल्लाह तुम पर मेहरबान हुआ। कब मेहरबान हुआ बोलिए, यहाँ वो सब हस्फ हो गया। देखिए कब मेहरबान हुआ, जब उन्होंने कत्ल किया, जब उनको सज़ा दी, जब सज़ा दी तो अल्लाह मेहरबान हुआ। चलिए अब दादा और देखो तुम्हारी ढिठाई, किस कदर तुम ढीठ हो अल्लाह के जनाब में। साफ मूसा से कहते हुए कुल तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नल्ला जहरतन, कितनी बड़ी ढिठाई तुम्हारी, कितना बड़ा मुतालबा तुमने किया है। सोचो, गौर करो, तुम्हारा ये इस नबी के साथ ये हरकत थोड़ी नहीं हो रही, कोई नई बात नहीं तुम्हारी, तुम अपने नबी के साथ तुमने हरकत क्या की। अय मूसा लन नुअमिन लका, हज़रत मूसा के एहसानात देखिए अभी ऊपर हुए, किस तरह
अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के ज़रिए उनको नजात दी, इनाम से नवाजा, फिरौनी मज़ालिम से नजात दिलाई। और फिर क्या कह रहे हैं, वही क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, ऐ मूसा हम तुम पर, चलिए नहीं, हरगिज़ यकीन न करेंगे। यकीन नहीं करेंगे, तर्जमा ठीक है, यकीन नहीं करेंगे, ये कौन किसका तर्जमा है? ये मारिफुल कुरान। ठीक है, हाँ यकीन नहीं करेंगे, है ना। और इनका क्या तर्जमा? यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। इधर क्या तर्जमा? आप तर्जमा पढ़िए, वही है। ये अरबी है क्या आपका? अब ठीक है, चलिए। तुमने हज़रत मूसा से कहा था जब तक हम अपने रब को सामने ना देख लें हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। ईमान न लाएंगे, ये किसका तर्जमा है? इब्न कसीर का, ठीक है। थानवी कहते हैं ना मानेंगे। न मानेंगे, मौलाना थाने का तर्जमा देखिए बेहतर है। मानना, देखिए दो बातें हैं मौलाना जावेद कासमी साहब, दो बातें हैं। एक आमन बे आता है, आमन बे आता है, एक आमन लाम आता है, दोनों में फ़र्क है। आमन बे के माने आते हैं ईमान लाना, जैसे आमन तो बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही बे, वो चीज़ें जिन पर जो है ईमान लाए उन पर बे दाखिल कर देते हैं। लेकिन ईमान लाम जब आ जाता है, ईमान के साथ लाम का सिला जब आता है, तो उसके लिए ईमान लाना नहीं होता, बल्कि उसके माने बात मानना, तस्लीम करना। और जैसे कि आप सूरह यूसुफ पढ़ते हैं कि हज़रत यूसुफ के भाइयों ने जब हज़रत उनको कुएं में डाला, फिर आए हैं रोते हुए हज़रत याकूब के पास, तो उन्होंने क्या कहा था? मा अंत बिमुमिनिन लना। तो आप क्या तर्जमा करेंगे? आप हम पर ईमान नहीं लाएंगे? नहीं, आप हमारी बातें मानेंगे नहीं। बात मानना, चाहे वो हर एक पर ये दाखिल हो सकता है, लाम हर एक पर दाखिल हो सकता है। मुस्तफ़ा साहब हम कस लम उमिन लका, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते, है ना। लेकिन आमन बे जो होता अंबिया पर आएगा, किताबों पर आम इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये समझा कि नहीं? आमन बे के इस्तेमाल आम नहीं हो सकता। आमन बे के इस्तेमाल किताबों के लिए, रसूलों के लिए, फरिश्तों के लिए, जिन जिन चीज़ों ईमान उस पर आमन बे आएगा। आमन लाम जो है हर एक के लिए आ जाएगा। चलिए, तो वहाँ लन्नू में न लका, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, यहाँ बावर करना, मुतलक बावर करने के माने में। चलिए, यहाँ तक कि हम देख लें अल्लाह ताला को अपनी आँखों से, इन आँखों से देख लें। चलिए आखिर फ़क़त मुसाइक़ा, तो क्या किया? कड़कने आ लिया उनको। वअंतुम तंजुरून, तुम देख रहे थे। वअंतुम तंजुरून, तुम देख रहे थे। कौन देख रहा था? बनी इसराइल के देखते देखते। कौन बनी इसराइल थे भाई? जिन लोगों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, हम बात नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह को देख लेना। फ़ाक़त मुसाइक़ा, तुमको तुम्हारे निगाहों के सामने जो है क्या हुआ? तुम्हारे निगाहों के सामने कड़कने में। साइक़ा के माने, साइक़ा के माने देखिए, तीन लफ्ज़ हैं, एक राद है, एक बर्क़ है, एक साइक़ा है। तो साइक़ा माने कड़क, जो बिजली गिरती है। कड़क मत कहे, बल्कि वो जो बिजली गिरती है उसको साइक़ा बोलते हैं। और रात कहते हैं कड़क को, और बर्क़ कहते हैं जो बिजली कौंधती है, बिजली कौंधना जो चमक होती है उसको बर्क़ बोलते हैं। तो साइक़ा वो बिजली जो गिरती है उसको साइक़ा बोलते हैं। समझ गए कि नहीं फ़र्क? एक है जैसे कि अभी इसी सूरह में पढ़ा है ना कि रात व बर्क़, हाँ नहीं सब रात बहमदे, यहाँ भी है ना, और कस्से मिन अस्समाइ फी ज़ुलुमात व राद व बर्क़, रात व बर्क़, और फिर सवाइक़ है आगे। तो रात है, रात क्या है? कड़क। बर्क़ क्या है? बिजली का कौंधना। और साइक़ा क्या है? बिजली का गिरना, जो बिजली गिरती है उसको बोलते हैं। फ़ाक़त साइक़ा, तुमको बिजली गिरी उन पर, तो फ़ाक़त साइक़ा। वअंतुम तंजुरून,